MC ਦੀ ਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਕੀ ਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਣਗੇ। ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਣਗੇ। ਕੀ ਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਕਰਿਆ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਕਰਿਆ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਣ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਲਾਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਨਾਲ ਸਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਨਾਲ ਸਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਜਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ
समुंदर आया, अगे पानी पिछे फौजा, वेख के मन घबराया। पानी दे विचों दी दिता ए राह दिखा, दिखा मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो कर दे ने बंदगी, उन्हां दी सुने दुआ। जो कर दे ने बंदगी, उन्हां दी सुने दुआ। सारे ਨੂੰ ਜੈਨਸੀ ਦੀ ਐਮਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸदैव ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਿਸਕੀਅਲ ਜੇਕਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਪੁਰ ਬਲੀਵਾਰ ਬ੍ਰਦਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੈਮ ਜੋ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਨੇ ਇਸ वचन के लिए प्रार्थना करनगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी महान पिता प्रभु जी, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आपने एक समय दिया महान परमेश्वर कि एक साथ हम संगति कर सके आपके योग्य दास के द्वारा। प्रभु आपके वचनों को सुन सके, सीख सके। महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु अपने वचन से सीखने में, प्रभु के नाम में बढ़ने में सहायता करना। नेटवर्क की किसी भी प्रकार की समस्याओं को आप दूर रखिए महान परमेश्वर। और प्रिय आपके दास को हमें देखते हैं महान परमेश्वर, अपनी आत्मा की भरपूरी दीजिए महान प्रभु जी। आपके वचन से बोले, हम केवल सुनने वाले नहीं, अपने जीवन में लागू करने वाले बने महान परमेश्वर। सब बातों को आपके हाथों में देते हैं, विनती प्रभु यीशु मसीह। आमीन आमीन। सभी को बेनती है अपने अपने जो वीडियो है वो ओपन कर लें। टीचर जब बोले तो आपका ध्यान उनकी ओर होना चाहिए। कोई बंद कैमरा करके इधर उधर मत जाए, नहीं तो यहां से मैं उनका कैमरा बंद कर दूंगा। ओके ओके ब्रदर, आपका समय आपके साथ शुरू होता है। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सारण जय मसीह दी। जय मसीह दी। जय मसीह की। हम लोग यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के बीच में रुके हुए हैं। गाड़ी रुका दिया हम लोग ने, जैसे मैसेज के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया आप सबों से मिलने का। एक दूसरे को देखकर बड़ा आनंद है। प्रभु के वचन के साथ फिर एक बार मिलने का मौका दिया है परमेश्वर ने, इसलिए मैं प्रभु का विशेष धन्यवाद करूंगा। आप प्रभु के दास जगदेव कुमार के लिए, साथ साथ दोनों कलसियों के लिए विशेष मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा। तो दोनों ने प्रेम दिखाया और परमेश्वर का वचन सुनने का मौका मिला। ज्यादा समय नहीं, हम थोड़ी सी 38 मिनट से 40 मिनट के बीच में कुछ एक विषय ऐसे है जो आपके जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, अलग अलग नेटवर्क के द्वारा लोग वचन सुनने का मौका प्रभु ने दिया, इसलिए धन्यवाद। मेरी आशा तो रहेगी कि इस गूगल के जगह पर हम आमने सामने मिले और एक दूसरे से मिले और एक बार प्रभु के धन्यवाद करते हैं। जैसे हम लोग आज का जो शीर्षक देख रहे थे, हेडलाइंस देख रहे थे,
मसीह में जो भाई होता है एक दूसरे का बोझ कैसे उठाता है। ये इतना छोटा सा 30-40 मिनट में खत्म होने वाला तो है नहीं, 2-3 दिन बैठेंगे तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि संसार जब से चलता आया तब से एक दूसरे के बोझ कोई ना कोई उठा रहा है। और एक दूसरे का बोझ उठाने का ये तरीका कैसे होना चाहिए, कैसे उठाया जाए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 3.5 वर्ष सिखाया। आप समझ लो जगदेव भाई दोनों कलीसियों को इकट्ठा करके, दोनों मंडलियों को 40 मिनट में आपको सिखाना चाह रहे तो बहुत कम, वो उसका तो आउटलाइन ही मिलेगा हमको। यीशु मसीह चेलों को 3.5 साल सिखाता गया, और यीशु मसीह का सिखाने का तथ्य और एक ही सबसे बड़ा काम था कि एक दूसरे के बोझ कैसे उठाए, एक दूसरे की चिंता कैसे करे, एक दूसरे के लिए वो कैसे मर मिटे, एक दूसरे की जरूरतों को कैसे समझे। इन चीजों को यीशु मसीह जब चेलों को सिखाया, और उन चेलों ने जो सीखा था उसको अलग अलग कलीसिया में बांटते गए, इसी की वजह से आज हमारे भारतवर्ष में भी कलीसिया खड़े हैं। आपको बता दूं, जो आज का शीर्षक इन्होंने प्रिय भाइयों ने लिया है बहुत ही उम्दा है, बहुत ही ऊंचा सब्जेक्ट है। इस ऐसा विषय मैं कहता हूं कि हर कलीसिया को चुनना चाहिए। अगर यीशु मसीह चेलों को एक दूसरे का बोझ उठाने वाला वो काम सिखाते नहीं, तो 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम तोमा था वो हमारे भारत में आता ही नहीं। अगर वो भारत में पैर नहीं रखता और आपका और मेरा उद्धार भी नहीं होता। सिर्फ एक दूसरा का बोझ नहीं, मैं यूं कहूं कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले ने पूरे भारतवर्ष के 130 करोड़ लोगों का बोझ उठाया। यीशु मसीह की जो सिखलाई थी 3.5 वर्ष की, उस सिखलाई में बोझ उठाने का तरीका इतनी अच्छी तरह से समझ में आया तोमा को। एक दूसरे की बोझ नहीं, एक परिवार का दूसरा परिवार का बोझ नहीं, एक कलीसी से दूसरा कलीसी का बोझ नहीं, देश का बोझ उठाया उसने। और एक दूसरे के बोझ उठाने में त्याग करना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आसान नहीं है बोझ उठाना, आसान नहीं है, इसलिए बोझ न उठाए और पीछे हट जाए ऐसे भी नहीं करना चाहिए हमें। तोमा अपने देश छोड़ आया, हमारे भारतवर्ष में पैर रखा, त्याग किया और उसकी कीमत चुकानी पड़ी। अपना प्राण भारत के लिए उसने दिया, कीमत तो चुकाना पड़ा, प्राण दिया है। इसके वजह से आज 130 करोड़ लोगों के, भारतवर्ष के लोगों में से पंजाब में आप, कर्नाटक में मैं, भारतवर्ष के हर राज्य में अलग अलग जगह पर हम सबों का उद्धार हुआ है। अगर बोझ कोई नहीं उठाता तो शायद आज अभी भी हम पीछे होते। आपको पता है दुनिया के कितने देश ऐसे हैं जिनके देशों में अब तक ये सुसमाचार पहुंचा ही नहीं है। अभी तक कई देश, छोटे छोटे देश ऐसे पड़े हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है। तो आज हम इस चीज पर ध्यान करना चाहते हैं। बोझ का मतलब है एक दूसरे के बोझ उठाने का। बोझ का मतलब कभी भी गलती से आपके दिमाग में ये ना रहे कि उसका बोझ, उस भाई का बोझ, उस बहन का बोझ, उस परिवार का बोझ अगर मैं उठाऊंगा मुझे ज्यादा तकलीफ होगा। अगर ऐसे सोचोगे बोझ नहीं उठा पाओगे। बोझ उठाने में आनंद लेना चाहिए। एक दूसरे के जब बोझ उठाते हो तो आनंद लेना चाहिए। और आनंद का फीलिंग क्या होता है पता है? वाह, मैं थोड़ी सी सहायता किया उनको और उनके चेहरे पे कितना खुशी लाया देखो मैंने। आप इसको ऐसे सकारात्मक रीति से लीजिए। आप बोझ उठाने की वजह से आप बोझ के नीचे दबे नहीं है, आप बहुत ज्यादा मुसीबत में नहीं आए। जिसका बोझ को आपने बांटा उनके चेहरे की खुशी को तो देखिए एक बार। उनको थोड़ा सा जो समय आपने आनंद का जो झलक दिए उसका आनंद तो देखिए आप। हमें मसीह लोगों को अपने आनंद में नहीं, दूसरों के खुशी में, दूसरे के आनंद में आनंद मनाना चाहिए।
दुख की बात है, मसीह लोगों में भी अन्य लोगों की तरह दूसरों के दुख में खुशी मनाते हैं कई लोग। दूसरे खुश हो तो खुश नहीं होते, अगर उनको तकलीफ होगा तब खुशी मनाते हैं। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए वचन की ओर जाते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करे। गलतियों के पत्री, नया नियम में गलतियों के पत्री 6वां अध्याय पद 2 पढ़ेंगे हम। गलतियंस चैप्टर 6 वर्स 2 पढ़ना चाहेंगे हम। अगर कोई हिंदी में बाइबल पढ़ के सहायता कर रहा है तो और अच्छा लगेगा मुझे। ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करे और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करे। पंजाबी में भी कोई पढ़ सकता है अगर पढ़ना चाहे तो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम लोग। पंजाबी में भी पढ़ना चाहेंगे भाई, लोगों को थोड़ा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਉਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੋ। वाह, एक दूसरे दे बाहर चुकलो जी। मौका मिलता है तो चुकी लो। एक दूसरे का भार उठाने का मौका अगर मिल गया, समझ लो इससे सौभाग्य और दूसरा कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि हम उठाना चाहते हैं, अरे हमको मौका तो दो कोई। इसलिए गलतियों की मंडलियों में से पौलुस जब इस मंडली में गया, प्रभु की सेवकाई किया, उसके बाद मंडली स्थापित हुई। मंडली स्थापित होने के बाद वहां के विश्वासियों को कई चीजों की विषयों के बारे में लिख रहा है, उनको समझा रहा है कई चीज। मंडलियां ऐसे स्थापित होते हैं प्रियजनों। प्रभु का सेवक मेहनत करता है, एक दूसरे से दूसरे जगह जाता है, प्रभु के वचन को लेता है, एक एक व्यक्ति से शुरू करता है, एक परिवार से शुरू करता है, लोग जुड़ते हैं, फिर कलसी मंडली खड़ी होती है, उसके बाद आराधना शुरू होती है। फिर आपको मैं बता दूं, उस कलसी के बारे में उस प्रभु के दास को, सेवक को बड़ी चिंता लगी रहती है। ऐसे नहीं कि सेवकाई होगी, मंडली खड़ा हो गया चला गया, नहीं। जहां जहां मंडलियां खड़ी हो गई, पौलुस को 1, 2, 3 बार मिशनरी यात्रा करनी पड़ी। जहां जहां उन्होंने सेवकाई खड़ा की, हर जगह पर 2, 3 बार, तीसरी बार उन्होंने यात्रा कराए। गलतियों की मंडली में हमेशा गड़बड़ दिखाई देती थी। एक प्रभु के दास कहते हैं, गलतियों की मंडली हमेशा गड़बड़ करने वाली मंडली थी। कुरिन्थियों की मंडली लठ बजाने वाली मंडली थी। एफेसुस की मंडली मनमर्जी से चलने वाली मंडली थी। देखो, कलीसिया के अंदर भी ऐसे काम होते हैं। गलतियों की मंडली में हमेशा गलतियां करने वाले हैं। कुरिन्थी की मंडली के विश्वासी लठ बजाते थे एक दूसरे पर। एफेसी के मंडलियों में अपने मनमर्जी से जीते थे। अब गलतियों के मंडली के लिए एक बहुत ही जरूरी वाला चीज पौलुस लिखा है कि यीशु मसीह की तरह एक दूसरे के बोझ को उठा लिया करो। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया उनके सामने। ऐसे नहीं बोला कि सीधे बोझ उठा लो। बोझ तो उठाना जरूरी है, परंतु यीशु मसीह की तरह उठा लो। अब मैं कहूं कि आप भी बोझ उठा लो। आप दोनों कलीसिया के विश्वासी यहां जुड़े हैं, एक दूसरे के बोझ उठा लो, तो आपको भी कोई तो एक उदाहरण सामने हो, आपके सामने कोई तो रोल मॉडल हो उनकी तरह उठाने के लिए। देखो, आपके पास है, आपके असेंबली के एल्डर्स है, आपके असेंबली के प्रभु के दास सेवक है, एक दूसरे के बोझ उठा रहे हैं, एक दूसरे के बोझ का चिंतन कर रहे हैं, वचन बांटने का बोझ लाते हैं, लोगों को बुलाया करते हैं, सेवकों को बुलाते हैं, आपको घरों का चिंता करते हैं, विजिट करते हैं। अब पौलुस कहता है कि मेरी तरह नहीं है, आप एक दूसरे के बोझ यीशु मसीह की तरह उठाना। यीशु मसीह किस किस का बोझ उठाया? पूरे संसार के लोगों का बोझ उठाया, याद रखना। बोझ उठाते वक्त कौन और किसका मैं बोझ उठाऊं, इन बीच में कोई भी फर्क रखकर बोझ नहीं उठाया। याद रख लो, हम इन्हीं का बोझ उठाए क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं,
हम उनका बोझ उठाए क्योंकि वो बहुत प्यारे हैं, हम उनका बोझ उठाए वो बहुत अमीर है, ये बहुत सुंदर है, बहुत पढ़े लिखे है। नहीं, यीशु मसीह हम सबका बोझ उठाया, कोई फर्क नहीं था यीशु मसीह के लिए। चाहे हम गांव के थे, चाहे पंजाबी थे, चाहे कन्नड़ी थे, कहीं आंध्रा थे, कोई किसी भाषा थे, किसी देश के थे, लेकिन सबका बोझ एक साथ उठाया। तभी जाके कलसी और मंडली, परमेश्वर का देह शरीर जो है वो आगे बढ़ता है। अगर एक दूसरे की बोझ नहीं उठाओगे, परमेश्वर का जो शरीर है, वो मंडली है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। कलसी जो होती है, चर्च जो होता है, मंडली होता है, वो परमेश्वर का शरीर है, वो देह है। इसको आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का बोझ उठाना बहुत ही जरूरी है। पौलुस बहुत सुंदर रीति से कहा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, वैसे एक दूसरे की बोझ उठाओ। अब बोझ उठाने के लिए मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही बड़ा तथ्य है। सबसे बड़ा जरूरत वाली एक चीज है बोझ उठाने में, वो है प्रेम। अगर आपके पास प्रेम है तो बोझ उठा सकते हैं। आपके पास एक दूसरे से प्रेम नहीं है, एक परिवार से दूसरे परिवार के अंदर प्रेम नहीं है, आपके आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट होके गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी कान खून लहू हो जाए, आप उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। सच है या नहीं? आप बताइए मेरे साथ। अगर आपके पास प्रेम है, थोड़ी सी भी तकलीफ है तो आप दौड़ जाएंगे, आप दौड़ जाएंगे उनके पास, क्योंकि प्रेम उमड़ रहा है, क्योंकि प्रेम आपको दबाव दे रहा है, क्योंकि प्रेम आपको खींच के ले जा रहा है, क्योंकि प्रेम का कहानी ऐसे है कि आपको चुपचाप रहने नहीं देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में मेरे साथ आइए, एक वचन पढ़ना चाहते हैं हम, 15वां अध्याय का पद 13, जॉन 15:13 पढ़िएगा, कोई सहायता कीजिए। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। वाह, ऐसा कोई प्रेम नहीं है अगर एक मित्र दूसरे प्रेमित्र के लिए प्राण देता है। बाकी सारा बोझ उठाना, प्रेम दिखाना है लोगों के बीच में, परंतु यदि अगर आप ऐसे प्रेम दिखाने वाले मित्र बन गए, कलीसी के एक ऐसा विश्वासी बन गए, दूसरे विश्वासी के लिए प्राण देने लायक है, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई प्राण देने वाला मित्र है। मुझे तो दिखाई नहीं देता कोई भी। वो मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। संसार का बोझ उठाने वाला कोई मित्र हमारे लिए प्राण नहीं देगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा मित्र है जो हमारे लिए प्राण दिया है, जो हमें छुड़ाया है, जो हमें बचाने के लिए अपने आप को सूली पर प्राण दिया है। अगर प्राण मित्र को हम उदाहरण रखकर, प्राण मित्र को हमारे सामने रखकर, ऐसा कोई बड़ा मित्र नहीं है इस संसार में जो हमारे लिए प्राण देता है। वो प्राण देने वाला मित्र, प्राण मित्र यीशु मसीह है। हमारे से प्राण नहीं मांग रहा है, याद रखना, हमसे प्राण नहीं मांग रहा है। कम से कम हमसे हमारा समय तो मांग रहा है, बोझ उठाने के लिए, कार्य करने के लिए, प्रेम तो दिखाने के लिए मांग रहा है। तभी आपकी कलसी बढ़ेगी। याद रखना, कलसी की बढ़ोतरी, आपकी कलसी में बढ़ोतरी, आपके कलसी में प्रेम, एक दूसरे का जब बोझ बांटोगे, कलसी सुंदर बनेगा, बागान सुंदर बनेगी। एक दूसरे का बोझ बांटिए। एक गलतियों की पत्री से हम शुरुआत किया। मैं बताता हूं, कलसी का एक रूप है, कलसी का एक रूप है। पहला कुरिन्ती 3 अध्याय का पद 9 पढ़िएगा, उसमें वहां पर एक कुरिन्ती हम लोग मंडली का रूप देखते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर से ही सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की संरचना हो। 3 चीजों को हम ध्यान देते हैं यहाँ पर, 3 चीजों के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। परमेश्वर के उस सहकर्मी हम हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले हम हैं, परमेश्वर के उस मंडली के बारे में उन्होंने 3 चीजों का जिक्र किया है इधर। इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 चीजें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर।
पहला उन्होंने बोला हम परमेश्वर के खेती हैं, परमेश्वर के खेती के अंदर हम बैठे। याद रखिएगा, हम सब मिलकर परमेश्वर के खेत में बैठे हैं। अब पता है परमेश्वर का खेती का मतलब जो कलसी होती है, मंडली होती है, वो परमेश्वर की खेती है। अब इस खेती में अगर आप है, इस खेती में आपको काम करना है। खेती एक अपने आप बढ़ती नहीं है। खेती के अंदर अकेला होकर कोई भी फल नहीं ला सकता। खेती के अंदर किसी का अगर फल की आशा किसी को है तो एक अकेला फल नहीं ला सकता खेती में। खेती की रूल देखिएगा। खेत का मतलब है हमारी जमीन है, हमारी बागान है, हमारी खेत है। ये मंडली नामक खेत, मंडली नामक बागान के अंदर एक दूसरे का बोझ नहीं उठाओगे तो उस बागान के अंदर फल नहीं मिलेंगे आपको। मसीह भाई, एक दूसरे के बोझ नहीं उठाओगे, आपको आपके कलसी के अंदर, आपके परिवार के अंदर वो सुख, वो सुकून, वो फलदायक चीज नहीं मिलेगी आपको। आपको पता है कलसी को बाइबल में एक बागान, एक खेती के रूप में उठाया गया है। अब बताओ, खेती करने वाली बागान, खेती वाली जमीन बाइबल में कहां शुरुआत होता है? कौन बताएगा आप में से? आप आवाज खोल सकते हैं। सबसे पहले कहां सुनते हैं हम बागान के बारे में, खेती के बारे में? सबसे पहले बागान में कौन सा बागान दिया था परमेश्वर ने? एदन की वाटिका दिया था ना। एदन का बागान मिला था ना उनको। एदन की वाटिका वाली एदन के बागान के अंदर आदम और हव्वा को ले गया था। और इस बागान को इंग्लिश में लिखा है, जो हम अभी पहला कुरिन्थियों के 3:9 में पढ़ रहे थे। आप खेती है, इंग्लिश में लिखा है गार्डन है। हमें कलसी को गार्डन बनाया है। अब बताइए गार्डन के अंदर क्या होता है? अलग अलग तरीके के फूल होते हैं, अलग अलग तरीके के फल होते हैं, अलग अलग तरीके के सुंदर से दिखने वाले पौधे लगे होते हैं, अलग अलग तरीके के खुशबू आते हैं। ये सब कुछ अपने आप हो जाता है क्या? अपने आप नहीं होता है। इसके लिए पौधे लगाए जाते हैं, इसके लिए बीज बोए जाते हैं, इसके लिए पानी दिया जाता है, इसके लिए खत दिया जाता है, इसके लिए कटनी किया जाता है। इसके बाद ये सुंदरता बढ़ती है। आपको पता है कलसी के अंदर अगर सुंदरता आना है, कलसी के अंदर आनंद आना है, कलसी के अंदर फल दिखना है, एक दूसरे के बोझ उठाना बहुत जरूरी है। और कलसी को इन्होंने कहा कि ये बागान है, ये वाटिका है, ये खेती है। इस खेती के अंदर जब भी जमीन के अंदर आपको फल लाना है, सबसे पहले जब बीज बोया जाता है का जब तक जड़ नहीं पकड़ता अंदर तक, तब तक ऊपर फल नहीं दिखाई देगा। जड़ पकड़ने के लिए एक दूसरे की बोझ उठाना है। एक व्यक्ति आके पानी डालेगा, दूसरा व्यक्ति आके खत डालेगा, तीसरा व्यक्ति कचरा निकालेगा, चौथा व्यक्ति समय पर उसकी कटनी करता रहेगा, सूखे हुए पत्तों को निकालेगा, अच्छे पत्तों को लगाएगा। ये अलग अलग चीजों को करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे हम नहीं कर पाते हैं तो इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। ये एक दूसरे के साथ बोझ उठाना बहुत जरूरी है। पौलुस ने कहा कि इसके पत्री में हम यहां देख पा रहे हैं कि पौलुस ने पहला कुरिन्थी 3:9 में लिखा है, हम बागान हैं, हम खेती हैं, हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के हाथ में है। और जब बीज बोया गया मंडली के अंदर, एक विश्वासी को ले आया गया, उसके जड़ पकड़ने तक काम सबको साथ करना चाहिए, बोझ उठाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि एक विश्वासी आ गया है, अब सेवक के सिर पे डालते, एल्डर के सिर पे डालते, वो संभालेगा। नहीं, एक बागान के अंदर जब बीज बोया जाता है, साथ मिलके काम करते हैं। अगर एक ही व्यक्ति करने लग गया, वो पेड़ सूख जाएगा, है ना। सारे लोग खेती तो करते हैं आप लोग,
खेत में भी अगर एक अकेली बहन लग गई तो समझ लो आपका फल गया, कुछ नहीं मिलने वाला उपज आपको। तो शुरुआत से लेके आखिर तक सबको काम करना जरूरी है, सब मिलके साथ काम करना जरूरी है। इस बागान के अंदर जब बीज बोया जाता है, बीज बोने से पहले जमीन को ठीक किया जाता है। जमीन को ठीक करने के बाद बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद पानी दिया जाता है। पानी डालने के बाद खत डाला जाता है। खत डालने के बाद परमेश्वर के साथ हम लोग राह देखना पड़ता है। परमेश्वर के राह देखना पड़ता है हमें कि परमेश्वर हमें क्या दे रहा है, परमेश्वर इसका फल कैसे लाएगा, इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ता है। हम उसको वहां तक इंतजार करना पड़ता है, परमेश्वर हमें क्या फल दे रहा है इसका इंतजार, क्योंकि फल देने वाला परमेश्वर। अगर बोझ नहीं उठाएंगे फल नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं आपको, एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएंगे हमें फल नहीं मिलने वाला है। तो आज हम इस बात का ध्यान रखेंगे, हम परमेश्वर के खेती हैं, हम परमेश्वर के बागान हैं, हम परमेश्वर के वाटिका है। वाटिका बागान का मतलब मंडली है, कलसी है प्रियजनों। और इस कलसी के अंदर सब मिलकर काम नहीं करेंगे, इसमें फल नहीं मिलने वाला। अगर आप सोचते हैं कि इस बागान का, इस खेती का एक मालिक है वो कर लेगा, आप कभी भी देख लेना मालिक अकेला काम नहीं करता। करता है क्या खेतों में मालिक अकेला काम करता है? नहीं। एक अकेला अगर काम करने लग जाए उसको फल मिलने वाला नहीं है। सब मिलकर जुड़कर काम करते हैं। अब दो मंडली के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, मेरी हाथ जोड़ के नम्र विनती है, आप दोनों के मंडलियां दो बागान है, दो खेत है, दो वाटिकाएं हैं। इसमें फल लाने के लिए एक दूसरे का बोझ उठाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की जरूरत की ओर जाना, समय पर पानी देना, समय पर सिंचाई करना, समय पर गंदगी को हटाना, समय पर गोबर डालना, समय पर फल का इंतजार करना, इन चीजों को आपको करना जरूरी है। तभी आप आपके बागान को, आपके वाटिका को सुंदर बना सकते हैं, तभी आप उसका फल देख सकते हैं, तभी आप उसका आनंद भी ले सकते हैं। वरना आप उस बागान का, उस वाटिका का आनंद ले नहीं सकते। आइए, मुझे नहीं पता आप में से किसको पानी डालने का मौका काम दिया है परमेश्वर ने। मैं नहीं जानता आप में से किसको सिंचाई करने का काम दिया है। मैं नहीं जानता आप में से किसको यूरिया, फास्फोरस, गोबर डालने का काम दिया है। हो सके किसी को छटाई करने का काम दिया होगा, किसी को बीज बोने का काम दिया होगा, किसी को कटनी के लिए काम दिया होगा, किसको लेकर सारी चीजों को जोड़ने का काम दिया होगा। एक दूसरे का बोझ उठाने का मतलब, हम बोझ तब उठा पाएंगे हमें दिया हुआ काम क्या है वो समझे पहले। सबसे बड़ी हमारी समस्या कहाँ है मैं बता दूं आपको, हमें पता ही नहीं है परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए बुलाया। मंडली में है हम, लेकिन हमारा काम क्या है पता नहीं, इसलिए बोझ नहीं उठा पा रहे। तो मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि परमेश्वर से एक बार आज प्रार्थना में पूछ लीजिए, जैसे वचन सुन रहे हैं, और परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु जी हमें किस काम के लिए आपने बुलाया है, मेरा काम क्या है, मेरे काम के लिए किस काम के लिए आपने बुलाया है। मुझे ये बात तो याद रखिए, बोझ वो उठाएगा जिसको परमेश्वर ने बुलाया है। सही है? सबको समझ में आ गया? अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया नहीं है तो आप बोझ नहीं उठा पाएंगे। कलसी में जुड़ने वाला प्रति विश्वासी, हर एक स्त्री पुरुष भाई बहन सुन लीजिए, विशेषकर अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है आप बोझ उठा पाएंगे। परमेश्वर ने नहीं बुलाया बोझ नहीं उठाएंगे। किसी व्यक्ति ने, मनुष्य ने बुलाया है या अपने आप अपने दिल से, दिमाग से आए हैं तो आपको बोझ उठाने का समय नहीं मिलेगा, आप बोझ नहीं उठा पाएंगे। मेरे साथ एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 1 और 2 वचन एक बार कोई पढ़ के दिखाइए। एफेसियों का पत्री 4 अध्याय पद 1 और 2। इसलिए मैं जो प्रभु में कैदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, सारी दीनता और नम्रता सहित
और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। बस बस ब्रदर, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया। ये बात अगर आपको पकड़ में आ गया तो सारा चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आज हमसे बोल रहा है कि जिस बुलाहट से परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, परमेश्वर की बुलाहट है। गलती से ये नहीं सोचना कि जगदेव भाई ने बुलाया आपको। हाँ, तभी तो गलत होता है, तब तो बोझ नहीं उठाएंगे हम। कभी कोई कहेगा कि कोई बुलाया है, व्यक्ति बुलाया, तो आप बोझ उठाएंगे नहीं। बोला उनको खुश करने के लिए जीवन जिएंगे बस आप। लेकिन परमेश्वर का वचन एफएसी में कह रहा है कि कैद में रहते हुए परमेश्वर का कैदी बनकर पौलुस कह रहा है, मेरी आशा ये है, मैं तो तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है। इस बात को समझ लीजिए। बोला मैंने नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। जिस बुलाहट को परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, उस बुलाहट के योग्य जीने के लिए कोशिश करें। कैसे योग्य जिएंगे, आगे उसी वचन के आगे जाते जाते उन्होंने साफ कर दिया है, क्योंकि वचन में जीने का तरीका बता दिया उसने। हम आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य, सहनशील, प्रेम, एक दूसरे को सहन करना, शांतिपूर्वक रीति से एक दूसरे से बंध कर एकता में जिए। ऐसा हो तभी तो आप बाहर उठा सकते, बोझ उठा सकते। बोझ उठाने के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के अंदर फल आने के लिए, इस बागान में फल आने के लिए, पहला वचन में कहा कि आप अपने आप, इस परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। इस बात का हमेशा याद रखना। मैंने नहीं बुलाया, जगदेव भाई ने नहीं बुलाया, बलहार सिंह भाई ने नहीं बुलाया, पंजाब के चाहे कोई भी सेवक का नाम ले लो, किसी सेवक ने आपको नहीं बुलाया है। बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया। गॉड हैज कॉल्ड यू। कितना सुंदर बात है। मुझे ये जो वचन पढ़ता हूं मुझे बहुत आनंद होता है, क्योंकि परमेश्वर के कलीसिया में परमेश्वर के काम के लिए हम सबों को परमेश्वर ने बुलाया है। अब इसमें आनंद आता है। तब हम हिम्मत से काम करते हैं कि हम बोल सकते हैं कि हम सब परमेश्वर से बुलाए गए, और हम तब कह सकते हैं कि चलिए एक दूसरे की बोझ बांटते हैं, और तब आनंद आता है। चलिए हम काम करते हैं, चलिए हम एक दूसरे का बोझ, आप पानी डाल रहे हैं, चलो मैं तो बीज डालता हूं, मैं खत डालता हूं, मैं कटनी करता हूं, मैं गंदगी साफ करता हूं। ये सारे काम बांट लेते हैं हम लोग। कब बांटते हैं? जब हमको ये स्मरण आता है, ये समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और लिखा है कि आप अपने इस बुलाहट के अनुसार आचरण करें। जैसे परमेश्वर ने बुलाया है, उस बुलाहट के हिसाब से आप काम करना, उस बुलाहट के हिसाब से आप एक दूसरे की बोझ उठाना। अगर परमेश्वर की बुलाहट को आप समझ गए तो बोझ उठाएंगे। कलीसिया की उस उन्नति को समझ गए, बोझ उठाएंगे। इस बागान के अंदर, वाटिका के अंदर फल आना है, ये आपकी मन में जब भर जाता है, मन में समझ में आता है, तो आप दौड़ लगाएंगे। और जब भी आप एक दूसरे के बोझ उठाते हैं, ये कहां से सीखते हैं? कलीसिया से, मंडली से सीखते हैं। आप चर्च में जब आते हैं तब सीखते हैं। ये तो बुलाया कहां पर है? आप गांव में थे, आप दुनिया में थे, आप और हम पाप में डूबे हुए थे, हम आप संसार में थे। वहां से प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह की संगति में बुलाया। कितनी अच्छी चीज है। इसलिए मंडली का मतलब, चर्च का मतलब एक्लेशिया, एक ग्रीक शब्द है। एक्लेशिया का मतलब अलग किए गए हुए लोग। दुनिया में रहने वाले लोगों को उन्होंने अलग करके बुलाया है। आइए मेरे साथ एक और वचन में पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। इस वचन के बाद आते हम रोमियो का पत्री 12 का 1। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर बेनती करता हूँ
कि मैं अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ और तुम्हारी आत्मिक सेवा है। समझ में आया क्या आत्मिक सेवा है? एक दूसरे को बोझ उठाना, एक दूसरे को समझने के लिए अपने आप को जीवित बलिदान ऐसा प्रभु के चरणों में समर्पण करो, तब बोझ उठा पाएंगे हम। हमको बोझ उठाना समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम अर्पण किए नहीं है अपने आप को। मैं वापस आपको वहीं पर जो एफेसियों के 4:2 में लेके जाना चाहता हूं। 4:2 में वापस जाएंगे हम। यहां पर लिखता है कि आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें, और पद 2 में लिखा है पूर्ण रूप से विनम्र होंगे तब आप बोझ उठा पाएंगे। एक दूसरे को समझ कब पाएंगे? विनम्र होंगे तब समझेंगे। विनम्रता का मतलब क्या है? विनम्रता का मतलब उस व्यक्ति कोई भी तकलीफ हो, कितना भी दुख में हो, नम्र और विनम्र होता है, दुख को समझने की कोशिश करता है। और आगे दूसरी बात लिखा है सौम्य तथा सहनशील बने, तब जाके एक दूसरे की बोझ उठा पाएंगे हम। कलीसिया में किसी का बोझ नहीं उठा रहा है, सौम्यता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है। अब समझिए कि मंडली के अंदर किसी को तकलीफ हुआ है, सबको पता चला है, कोई जाके मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, हम जाना नहीं चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पहले इसलिए मैं शुरुआत किया था, बोझ उठाने में त्याग करना पड़ता है। बोझ उठाने में मैंने कहा एक त्याग करना पड़ा, दूसरा बोला बोझ उठाने में समर्पण करना पड़ता है। बोझ उठाने में अपने आप को दिया है उसने, प्रभु यीशु मसीह ने। थोमा ने भी अपने आप को दिया है। बोझ उठाने में खर्चा भी करना पड़ता है। बोझ उठाते वक्त अपने जेब से भी कुछ देना पड़ता है। कभी कभी लोग डर जाते हैं, इसलिए नहीं उठाते बोझ। प्रभु के दास लोग, प्रभु के सेवक भारतवर्ष में या अगुवैये जो एल्डर्स बन जाते हैं और विश्वासी जो है रोल मॉडल तब हो सकते हैं कि एक दूसरे के बोझ उठाएंगे। शायद थोड़ा त्याग करना पड़े, थोड़ा खर्चा करना पड़े, थोड़ा समय देना पड़े, अपना समय देना पड़ेगा, तब जाकर मंडली में बढ़ोतरी होगी, तब जाकर मंडली में आनंद आएगा, तब जाकर फल आएगा, फूल आएगा, अलग अलग तरीके के सुगंध आएंगे। और यहां लिखा है कि दूसरे वचन पे जा रहा हूं फिर वापस में, एफएससी के 4:2 में, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें। बोझ तब उठ सकता है आप एक दूसरे के सहन करोगे। और सहन करते वक्त बोला है कि प्रेम से सहन करना। 2 बच्चे अगर खेल रहे हैं या 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, भारी हो गया, दूसरा बच्चा उठाना चाहता है और तो घर से लड़के निकले, तो उठा सकता है क्या वो बोझ? वो बड़ा तंगी में परेशानी हो गया तो बोला अच्छा हुआ और थोड़ा बोझ उठा, मेरे से घर से लड़के आया था ना, इसका बस बोझ नहीं होगा, फिर भी नहीं उठाएगा क्योंकि प्रेम खत्म हो गया। यीशु मसीह हमें एक उदाहरण ऐसे दिया, यीशु मसीह ने हमें एक सिखलाई दिया है कि एक दूसरे की बोझ हम तब उठा सकते हैं जब हम प्रेम रखेंगे एक दूसरे के अंदर। आज प्रेम की सिखलाई प्रभु देना चाहता है। प्रेम से जब हम रहेंगे, प्रेम से बोझ उठेगा, प्रेम के बिना बोझ नहीं उठ सकता है। और आगे लिखा कि प्रेम से एक दूसरे को सहन करे और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है उसे बनाए रखने का प्रयत्न करें। बोझ तब उठ सकता है शांति के साथ हो, बोझ तब उठ सकता है उस शांति को पवित्र आत्मा ने दिया हो, और उसको बनाए रखने की प्रयत्न जब करेंगे एक दूसरे का बोझ उठ सकता है। परमेश्वर आज हमारे साथ बात करना चाहता है, मंडली की उस स्थिति को हमारे सामने दिखाना चाहता है। कई बार हमारे स्थितियों में भारतवर्ष के, सिर्फ आपके दोनों मंडली के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, अपने मंडली और भारत के कई मंडलियों के बारे में बताता हूं। मंडलियों के अंदर बढ़ोतरी इसलिए नहीं होती कि एक दूसरे के बारे में चिंता करने वाले बहुत कम हो गया।
आपको पता है पौलुस ने तिमोथी के बारे में एक ऐसा गवाही दिया कि मेरे पास सब अपने अपने कामों से बिजी हो गए, अपने अपने कामों में चले गए, लेकिन एक तिमोथी बच गया जो मंडली के बारे में चिंता करता है। क्या मैं आज आपको पूछ सकता हूं, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, परिवार जुड़े हैं, हो सके इसमें से कोई एल्डर जुड़े हैं, प्रभु के सेवक भी जुड़े हैं, विश्वासी जुड़े हैं, आप में से ऐसा कोई है जो मंडली के बारे में बहुत चिंता करता हो, एक दूसरे भाई का चिंता करता हो, एक दूसरे बहनों का चिंता करता हो? मैं बताऊं, बोझ उठाने के लिए, चिंता करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। आपके दिमाग से अगर गलत विचार है तो उसको निकाल दीजिएगा। एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए अमीर होना बहुत जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं है। बोझ उठाने के लिए प्रेम चाहिए, बोझ उठाने के लिए एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ विनम्र होना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। और पवित्र आत्मा की जो परमेश्वर का बुलाहट है, वो बुलाहट हो तो हम समझेंगे और एक दूसरे का बोझ उठाने में आनंद लेंगे। तब हमारी मंडली बढ़ेगी, तब हमारी मंडली आगे जाएगी, तब हम एक दूसरे के साथ प्रेम में करेंगे। और पहला कोरिन्थियों का 3 का जो 9 हम पढ़ रहे थे, बोला परमेश्वर की खेती है, और दूसरा नंबर उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, इंग्लिश में बिल्डिंग कहा, हम परमेश्वर के भवन हैं। आपको पता है परमेश्वर का भवन का मतलब क्या होता है, वो बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? जिस मंडली में आप आराधना कर रहे हैं ना, उस मंडली के बारे में बात कर रहा है। अगर इस मंडली में आप जुड़ गए और एक दूसरे का बोझ के बारे में नहीं जानते, एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रख पाते, तो परमेश्वर की बुलाहट व्यर्थ हो गया। आराधना करते हैं, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत रीति से प्रभु के दास जगदेव कुमार को बहुत सालों से जान रहा हूं, आपके पास भी आ चुका हूं, कई जगह गांवों में भी गया हूं। लोग वहां के जब विश्वासी जाते, बोला प्रभु के दास ने बहुत मेहनत किया, यहाँ आए और काम किए, लेकिन हम सबों का काम के बावजूद भी कलसी जो होती है वो परमेश्वर का होता है। सभी दासों को इस्तेमाल करता है, लेकिन कलसी जो होती है वो बिल्डिंग है, हम परमेश्वर के भवन है, वो बांधे जा रहे हैं। और इस भवन में काम करने के लिए हम सबों को बुलाया है, तभी एक दूसरे का बोझ उठा पाएगी, समझेंगे। क्योंकि परमेश्वर के बुलाहट को हम नहीं समझ पा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें उसके भवन में बुलाया है, परमेश्वर का बोझ उठाने के लिए बुलाया है। ये भवन कौन का है, किसका है? आपका तो अभी 2 मंडलियां जुड़े हैं, भारतवर्ष में जितने भी मंडली जुड़े हैं, ये कोई व्यक्ति का मंडली कलसी नहीं है। ये किसका कलसी है? प्रेरितों का काम 20वां अध्याय पद 28 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है। कौन पढ़ पाएगा? प्रेरितों का काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय और पद 28 में हम पढ़ते हैं वहां पर। आगे तो इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर ने अपने लहू से मोला है कलसिया। वो झुंड, वो कलसिया है। वो कलसिया किसी व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति ने नहीं बनाया है, परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है। हम सबों को काम करने के लिए रखा है, वहां पर प्रेम करने के लिए रखा है, हम सबों को काम सौंपा है, हम काम करने के लिए चुने गए हैं। हमारी चुनौती जो है वो परमेश्वर की ओर से हुई है। इस बात को हमें समझना जरूरी है। हमारी चुनौती परमेश्वर से हुई है। परमेश्वर से चुनौती जो हुई है उसको समझना बहुत जरूरी है, उसके साथ चलना बहुत जरूरी है। और कलसी जो मंडली है, परमेश्वर ने खुद अपने लहू देकर हमारे लिए खरीदा है। इस लहू के साथ खरीदे गए उस मंडली के साथ, उस बागान के अंदर, उस खेती के अंदर, उस भवन के अंदर हमें बुलाया है। बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। बुलाया किस लिए? एक दूसरे के बोझ उठाने के लिए बुलाया है, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बुलाया है, एक दूसरे की मदद करने के लिए बुलाया है।
एक दूसरे का प्रेम करना, बोझ उठाना, इसलिए नहीं कि वो परिवार आगे बढ़े, वो व्यक्ति ऊंचा जाए, वो व्यक्ति कनाडा जाए, वो व्यक्ति अमेरिका जाए। हमको ऐसा लगता है कि इसको बोझ उठाए, इसको कनाडा भेज देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया भेज जाता हूँ। अभी तो अमेरिका जो गए वो वापिस आ रहे हैं लौट के। हमें कि बोझ उठाकर उनको अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भेजना नहीं है। परमेश्वर का आशा यह है कि हम एक दूसरे के बोझ उठाकर उनको स्वर्ग भेजना है। या हमें पासपोर्ट और वीजा इनकी स्वर्ग की दिलानी है इनको। यस बोला मुझे अभी चंडीगढ़ से एक फोन आया, 2 बेटियां फोन की, बोला अंकल जी वीजा के लिए लगा हुआ है, प्रार्थना कीजिए वीजा लग जाए। बोला हम कनाडा जाते हैं, दोनों नर्स है बेटियां। मैं बोला कनाडा का वीजा तो लग जाएगा, लेकिन आपका स्वर्ग का वीजा लगाने के लिए प्रार्थना जरूर करूंगा मैं। काल के जीवन के लिए वीजा लगाना है। अभी अनंत काल के स्वर्ग का वीजा तब लगेगा जब एक दूसरे के बारे में बोझ समझ पाएंगे, कलीसिया में हम काम कर पाएंगे, प्रभु के लिए हम जी पाएंगे, प्रभु के साथ हम आ जा पाएंगे। एक दूसरे के बोझ को जब समझेंगे तब हमारी कलीसिया मंडली बढ़ते जाएंगे। अगले 5 मिनट में मैं समाप्त करने जा रहा हूं। अभी तो मुझे लगा था कि शुरुआत ही हुआ और ये समाप्ति का समय आ गया। ये 30-40 मिनट में कुछ होने वाला नहीं। जगदेव भाई को हमको 3-4 दिन के लिए लेना पड़ेगा, ऐसे ही लगातार ना। ऐसा ही करना पड़ेगा। हम प्रार्थना करेंगे ऐसे समय के लिए। प्रभु का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि मैंने शुरू ही किया था और सिर्फ थोड़े थोड़े चीज बताया था। 1 कुरिन्थी का 3:9 में पढ़ रहे थे हम एक दूसरे के बोझ उठाने के लिए बुलाए गए। गलती 6:2 में पढ़ रहे थे। एफएससी 4:1 और 2 में बोल रहे थे कि बोझ उठाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम व्यक्ति से बुलाए गए तो हम उठाते नहीं है, समझते नहीं एक दूसरे को। और जब हम वो बुलाहट के अंदर हम समझ रहे थे कि हम खेती में, बागान में, हम वाटिका में हैं, तो हमें काम करना जरूरी है, क्योंकि हमें फल चाहिए ना। जिस कलसी में आप हैं, हमेशा ये सोच के चलिए, अगर मेरे कलसी के अंदर फल नहीं है, बाहर से परमेश्वर देखेगा, ऊपर से परमेश्वर देखेगा, सिर्फ हरे हरे पत्ते हैं। आपको पता है, चेलों के साथ एक बार ऐसी बागान में खेतों के साथ चलता जा रहा था, तो एक पेड़ को देखा और बोला इसमें फल नहीं था। और यीशु मसीह ने क्या कहा? वाह बेटे कितने सुंदर हो, कितने हरे हरे दिख। सुंदर है, आशीष पाओ, ऐसे कहा है। चेलों ने देखा कि सूख गया था। और नीचे वचन में लिखा है कि जबकि वो अंजीर का फल देने का समय भी नहीं था। यीशु मसीह को फर्क नहीं पड़ता समय असमय, इसलिए तो बोला सुसमाचार करना, बोझ उठाना, प्रभु के लिए समय हो असमय हो, हमको काम करना चाहिए। समय से कोई मतलब नहीं। प्रभु के लिए लड़ना चाहिए, मरना चाहिए, मिटना चाहिए। तो आज इस वचन के साथ मैं समाप्त करके आगे जाना चाहता हूं। एक और वचन आपके सामने रख के मैं निकल जाता हूं आगे। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय का 35वां पद। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय पद 35, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। देखिए, बोझ उठाने का बहुत बड़ा सूत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मैं यहाँ समाप्त करूंगा। यीशु मसीह के उदाहरण रखते हुए यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैंने सब तरीके का आपको सिखा दिया, कैसे मेहनत करना चाहिए, कैसे लेबर करना चाहिए, कैसे खेतों में काम करना चाहिए। बोझ उठाने के लिए कितनी मेहनत करती है। सिर्फ बोझ उठाने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा हाथ लगा के चले गया। एक जो कमजोर है उसकी सहायता करे। कमजोर की सहायता का मतलब हमेशा विश्वासियों के मन में पैसों के बारे में, तो पैसों के बारे में नहीं बोल रहा है परमेश्वर। मैं तो कहता हूं विश्वासियों को पैसे को चिंता करना ही नहीं चाहिए, वो परमेश्वर देख लेगा अपने आप। आप तो चिंता वो करो, आत्मिक रीति की चिंता करो, कलीसिया की चिंता करो,
एक दूसरे से बात तो करने की चिंता करो। बोझ का मतलब एक दूसरे को फोन तो करके देखिए। अगर आपके कलीसिया में कोई बीमार है, सिर्फ सेवक और सिर्फ एल्डर्स का नहीं है, पूरे विश्वासियों का बोझ है, काम बनता है। आपको पता चल गया कोई बीमार है, आप घर जाके एक फोन लगाइए और पूछिए, बहन जी कैसे हो, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, प्रभु चंगाई देगा। बस मैं कहता हूं कि उनके मन में इतना आनंद आएगा, डॉक्टर से पहले वो ठीक हो जाएंगे। कोशिश करके देखिएगा अगले सप्ताह से। जो चर्च में नहीं आए उनको एक फोन करिएगा, जो बीमार है उनको एक फोन करिएगा, प्रभु के दास को बोलिएगा, साथ में मिलकर काम करिएगा। मंडली में जब आते हैं आपको भी अलग अलग काम दिया है, जितना काम कर सकते हैं, जितना बोझ उठा सकते हैं उठा के देखिए और आपका मंडली आनंद से भरेगा। मैं आप दोनों के मंडली के बारे में नहीं, मैंने बहुत मंडलियां देखी है। कई लोग ऐसे हैं अपना आते हैं, चुपचाप बैठते हैं और चुपचाप निकल के चले जाते हैं। कई लोग ऐसे समय से लेट आते हैं, समय से पहले भी चले जाते हैं। कई 10 साल 20 साल 25 साल से कलीसिया में मंडली में है, लेकिन उनका कोई रोल समझ में नहीं आता किस काम के लिए है वो। उन्होंने कभी भी कुछ किया दिखाई नहीं दिया। बहुत ऐसे लोग हैं 20-25 साल से आते हैं, लेकिन चुपचाप आए और चले गए, बस खत्म। प्रिय भाई और बहन, हमें बोझ उठाने के लिए, काम करने के लिए, मंडली की बढ़ोतरी के लिए बुलाया है। बुलाने वाला परमेश्वर है, काम सौंपा है, फल देख रहा है, इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर मैं अभी प्रेरितों का काम 20-35 में पढ़ रहा था। करें और इस बात को याद कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लेने से देना आशीष का कारण है। क्या सुंदर वचन है। लेने से ज्यादा देना आशीष का कारण है। क्या लेने से? पैसों का नहीं है, बोझ उठाना आशीष का कारण है। एक दूसरे के जरूरतों को समझना। समझो आप दूसरे की बोझ उठाया, बहुत बड़ा आशीष है। ब्लेसिंग इज एट मोर इन गिविंग देन टेकिंग। आप कुछ लेते रहे, इससे ज्यादा आप कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मैं तो पैसे नहीं दे सकता, मैं तो मेरी जमीन नहीं दे सकता, लेकिन मैं मेरे साथी विश्वासी को क्या दिया? बोझ उठाकर सहायता किया। इससे बड़ा आशीष मेरे जीवन में, मेरे परिवार को और मेरे कलीसिया को और दूसरा कोई होना हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा समय सिर्फ 3 मिनट रह गया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। और हम यात्रा कर रहे थे। यात्रा में हम लोग हाईवे के बीच में रुकने के लिए प्रभु मदद किया है, और नेटवर्क को भी बीच में से कहीं रोक नहीं पाया, सुंदर रीति से दिया है। दोनों मंडलियों के, प्रभु के दास टेडवे भाई का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आने वाले दिनों में मेरी आशा ये है कि दोनों मंडली के विश्वासी एक दूसरे के बोझ उठाए, एक दूसरे के लिए लड़े, एक दूसरे के लिए प्रेम करे, विनम्र करे, और बहुतायत से दोनों मंडलियों में फल आए। आने वाले दिनों में प्रभु जब आएगा कहेगा कि शाबाश मेरे दास, थोड़े से काम में आप विनम्र रहे और ऊंचा काम मैं आपको देना चाहता हूं। यीशु मसीह की जय हो। धन्यवाद भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से और सुंदर तरीके से समझाया कि कैसे हम मंडली में एक दूसरे को बोझ को उठा सकते हैं। जब हम इस प्रकार से करेंगे तो मंडली बढ़ेगी और प्रभु का राज्य बढ़ेगा। इस चिंता को, इस बोझ को आपने बांटा, इसके लिए हम तहे दिल से आपके धन्यवादी हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सेवा को आशीष दे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं सभी को बताना चाहता हूं, भाई बहुत व्यवस्थित है। जब मैंने बात किया, ये ट्रिप में थे और अभी भी ट्रिप में है। सो धन्यवाद करते हैं भाई कि आपने फिर भी समय निकालकर इस विषय को बांटा जो हमने आपको दिया, क्योंकि ये जरूरत था असेंबली में कि हम एक दूसरे का बोझ उठाएं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद में हम सभा को समाप्त करेंगे। हमारे बीच में बहन कमलजीत एक ही स्टंजा गीत गाना है, वो गीत गाएंगे। उसके बाद में हम इस सभा को प्रार्थना सहित समाप्त करेंगे। बहन कमलजीत।